آغاز بڑی خبر سے، محسن نقوی نگران وزیراعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ محسن رضا نقوی نگران وزیراعلیٰ پنجاب مقرر۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے۔ محسن رضا نقوی نگران وزیراعلیٰ پنجاب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ محسن نقوی نگران وزیراعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا یہ آج فیصلہ ہوا ہے، اہم فیصلہ۔ محسن رضا نقوی نگران وزیراعلیٰ پنجاب مقرر۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ تحریک انصاف نے نگران وزیراعلیٰ کے لیے محسن نقوی کا نام مسترد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیراعلیٰ کے لیے محسن نقوی کے نام کو مسترد کر دیا ہے۔ کارکن تیاری کریں، عمران خان کی قیادت میں بڑی مہم چلائیں گے۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اس نظام کے خلاف سڑکوں پر جد و جہد کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے نمائندے ثاقب ویک نے۔ جی ثاقب، بڑا اہم فیصلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وقاص احمد نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ وقاص، آپ یہ بتائیے گا، یہ جو بڑا فیصلہ سامنے آیا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اور جو نئے وزیر اعلیٰ یعنی کہ نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے کب تک اپنے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں؟ ساری کارروائی کب کمپلیٹ ہوگی؟ جی بالکل عمران، دیکھیں آج نگران وزیراعلیٰ پنجاب کی تقرری کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں آج انتہائی اہم اجلاس یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوا، جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن اور چاروں صوبوں کے جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ اس میں شریک ہوئے۔ 15 رکنی جو ہے یہ اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جو چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں یہاں پر جاری رہا، جس میں نہ صرف حکومت جبکہ اپوزیشن کی جانب سے جو نام دیے گئے تھے ان تمام ناموں کا تفصیلی غور و خوض یہاں پر کیا گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو کیریئر سروسز سے متعلق جو تفصیلات تھی وہ بھی الیکشن کمیشن کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں رکھی گئی، جس کے بعد تفصیلی غور و خوض کے ساتھ 1.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، جس کے بعد جو اپوزیشن کی جانب سے جو تجویز کردہ نام تھا محسن رضا نقوی، اس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے فائنل کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 224A کی شق 3 کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے محسن رضا نقوی کا نام نگران وزیراعلیٰ پنجاب کے لیے فائنل کیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نام، یہ نوٹیفیکیشن گورنر پنجاب کو بھجوایا جائے گا، اور گزٹڈ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا نگران وزیراعلیٰ پنجاب کے بطور محسن رضا نقوی کے، جس کے بعد وہ جو گورنر پنجاب ہیں وہ محسن رضا نقوی سے حلف لیں گے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ایک تفصیلی جو ہے وہ آج جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام جتنے بھی ممبران تھے، اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے احمد نواز سکھیرا اور نوید اکرم چیمہ کا نام دیا گیا، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے احد چیمہ اور محسن رضا نقوی کے نام دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کی جانب سے تمام جتنے بھی ممبران دیے گئے تھے اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے، ان تمام ممبران کی جو تفصیلی جو پروفائل تیار کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیریئر سروس ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اور آج جب اہم سطحی یہ اجلاس ہوا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں، تو یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس اہم اجلاس میں پیش کی گئی، جس کے بعد 1.5 گھنٹے یہ تفصیلی غور و خوض جاری رہا، اور اس کے بعد نام جو ہے وہ محسن رضا نقوی کا نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو آرٹیکل 224A کے تحت 3 مراحل میں یہ جو وہ ان کی تقرری ہونی تھی۔ سب سے پہلے جو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان جو وہ اس معاملے کو دیکھا جانا تھا، لیکن 3 روز تک یہ معاملہ وہاں پر پینڈنگ رہا اور ڈیڈ لاک کا شکار رہا، جس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی، اور پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی جو ہے یہ 5 نام جو وہ سامنے رکھے گئے اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے، لیکن وہاں پر بھی جو وہ ڈیڈ لاک برقرار رہا، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہے یہ چاروں نام، 2 نام اپوزیشن کی جانب سے اور 2 نام حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہاں پر آئے۔ آج رات 10 بجے تک کا جو وہ ٹائم تھا، اور اس آج رات 10 بجے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان چاروں ناموں میں سے ایک نام کو شارٹ لسٹ کر کے فائنل جو وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، اور یہ 1.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں، جس کے بعد محسن رضا نقوی کا نام جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ نام گورنر پنجاب جو بھجوایا جائے گا، گورنر پنجاب اس کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، جس کے بعد حلف برداری کی تقریب ہوگی، اور 3 ماہ کا وقت جو ہے وہ ہوگا نگران سیٹ اپ کا، جس کے بعد اپنی کابینہ جو ہے وہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن رضا نقوی وہ اپنی کابینہ بنائیں گے، اور وہ تمام امور جو الیکشن سے متعلق جو امور ہوں گے ان تمام امور کی جو ہے وہ نگرانی کریں گے۔ جی
अच्छा वकास, हम देख रहे हैं 2013 में भी एक सहाफ़ी को ही, नजम सेठी को निगरान वज़ीर-ए-आला बनाया गया था। 2018 में प्रोफेसर डॉक्टर हसन नस्करी को बनाया गया और अब 2023 में हम देख रहे हैं एक मरतबा फिर से सहाफ़ती करियर रखने वाले मोहसिन नकवी को ही निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मुकर्रर किया गया है। और ये तीनों जो नॉमिनेशंस थी वो अपोजिशन की नॉमिनेशंस को ही हमेशा पिक किया गया है। देखिए इमरान, इस बात की अगर जो वो बात की जाए तो आर्टिकल 224A के तहत जो आईनी तरीकाकार दर्ज है, ये हमेशा से यही सितमज़रीफ़ी रही है कि जो हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो नाम दिए जाते हैं, उन दोनों नामों के ऊपर, उन दोनों तरफ से जो दिए गए नाम होते हैं, उनके ऊपर कभी इत्तफाक़ राय नहीं होता। ना ही जो वो वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन के दरमियान इसका फाइनल होता है, और ना ही पार्लियामेंट्री कमेटी जो वो इस मामले के ऊपर जो वो किसी भी नतीजे पर पहुंचती है, जिसके बाद मजबूरन इलेक्शन कमीशन के पास जब ठीक है वकास, आप हमारे साथ ही रहिए, इसी मामले पर मजीद भी बात कर लेते हैं। कर लिया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर साहब, जैसे कि चंद दिन पहले से ही यही सब लोग कह रहे थे कि मोहसिन नकवी का नाम जो है वो सबसे फेवरेट है और आज फैसला भी हो गया है, लेकिन इसके साथ तहरीक इंसाफ ने इसे मुस्तरद भी कर दिया है। आगे क्या होने वाला है आपके ख्याल में? देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से मुस्तरद करना ये उनका सियासी हक तो है, कानूनी हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो नाम दिया था सबसे पहले नासिर महमूद खोसा का, उसको PMLN ने भी ओके किया था, लेकिन नासिर महमूद खोसा 2018 में इमरान खान साहब ने खुद उनकी पार्टी की तरफ से तजवीज़ करदा नाम था। PMLN ने उस वक्त शहबाज शरीफ ने ओके कर दिया था और इमरान खान बैकआउट कर गए थे। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए नासिर महमूद खोसा, जिनका बड़ा अच्छा कैरियर गुजरा है, तो उन्होंने इस दफा माजरत कर ली कि इमरान खान का तो कोई एतबार नहीं है ना कि वो कब किस वक्त यू टर्न ले जाएं, कि ये ओके कर दें और वो फिर इनकार कर दें, तो बंदा इज्जत ही बचाता है। तो शरीफ आदमी ने यही काम किया, वरना इत्तफाक राय तो हो गया था और ये 2018 में भी हो गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने मियां महमूद रशीद की तरफ से दिए गए नाम से खुद ही पीछे अपने आप को हटा दिया था। और फिर जाहिर है जो भी हुआ वो सामने आया, और इस दफा भी उन्होंने जब माजरत कर ली तो ये बात क्लियर हो गई थी कि नसीर खान चूंकि डुअल नेशनल थे, सरदार अहमद नवाज सुखेरा और तो जो उनका नाम उन्होंने दिया, ये सारे के सारे 2 साल की आहद सीमा, 2 साल की पाबंदी पे आते हैं कि अहमद नवाज सुखेरा का अगर इत्तफाक राय भी हो तो पहले वो रिटायरमेंट लेते हैं, क्योंकि 31 को उनकी रिटायरमेंट है, और फिर 2 साल की पाबंदी थी। यही आहद सीमा पे भी थी कि वो पिछले साल में रिटायर हुए, तो नहीं हो सकते थे। टेक्निकली उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि मोहसिन रजा नकवी ही पंजाब के निगरान वज़ीर आला होंगे। तो अब चीमा साहब का नाम चौधरी परवेज इलाही ने आफ्टर थॉट में दिया, और वो पार्लिमानी कमेटी में इसीलिए अप्रूव नहीं हो सका कि जी जो नाम है उन पे बहस करें। तो अभी फैसले की वजूहात तो ज़ाहिर नहीं है कि इत्तफाक राय से फैसला हो गया। ये बड़ी क्लियर बात थी कि मोहसिन रजा नकवी के अलावा टेक्निकली जो नाम पहले दिन आ गए थे, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय नहीं हो सका था, तो फिर अब जाके इलेक्शन कमीशन के ऊपर ब्लेम कर देना ये बड़ी सख्त ज्यादती है, क्योंकि इमरान खान जब पहले इसी इलेक्शन कमीशन से मुस्तफीद भी होते रहे हैं, तो अब जब उनको ये समझ आ रही है कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये आईनी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि मेरी पसंद और नापसंद का तो नहीं है। या तो फिर वो अपोजिशन के जब हुकूमत में थे तो हिज़्ब इख्तियार के साथ रूल्स बदलवा लेते कि जो निगरान वज़ीर आला होगा वो वही होगा जो मौजूदा वज़ीर आला है, जैसे दुनिया भर में होता है। लेकिन ये तो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे और एक दिन भी नहीं बैठे, तो नतीजा यही निकलना था कि फिर जिसका इख्तियार है उसने इस्तेमाल किया, और 5 मेंबर्स ने आज इत्तफाक राय से फैसला किया। आप देख लें कि सारा दिन से PTI की तरफ से एक तनकीद इलेक्शन कमीशन पे बाकायदा प्लानिंग के तहत हो रही थी, और कहा जा रहा था कि जी जो मेंबर पंजाब है और बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि अगर मोहसिन नकवी का फैसला होता है तो अदालत खटखटाएंगे। तो क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से फिर क्या मिलेगा अब? देखिए, मैं आपको वो बात पहले कंप्लीट करके इसका भी जवाब देता हूँ कि जब एक आईनी इख्तियार मौजूद है तो उन्होंने उसको कर दिया। अब जब सुबह PTI की तरफ से हुआ कि जी पंजाब और KP के मेंबर इलेक्शन कमीशन बड़े अच्छे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिसमें PTI ने हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि राजा रियाज साहब की तरफ से जब नाम आए और फिर ये फैसला हुआ, और आज इनको ये दोनों मेंबर अच्छे लगे कि यही फैसला कर लें और सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं, आइन के अंदर लिखा हुआ है जिसके तहत ये नाम का फैसला हो गया है। तो क्या इनको उम्मीद है कि 63A की तरह आइन रीराइट सुप्रीम कोर्ट करेगी इनके लिए, जैसे वहां पे उन्होंने कह दिया था कि मेंबर के वोट भी कास्ट नहीं होंगे और वो नाअहल भी होंगे।
चूंकि आइन के अंदर तो लिखा हुआ है वोट कास्ट भी होंगे और वो उसके बाद रिपरकशंस हैं कि जिसके तहत उनको नाअहल करार दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां पे भी जाना चाहें, ये तो इनकी मर्जी है। ये एजिटेशन करना चाहते हैं, ये पहले भी कर चुके हुए हैं। वो अब देखा जाएगा कि पीटीआई इस शोर में क्या नए जो नामजद अब गवर्नर वजीर आला हो चुके हैं और वो सुबह ओथ ले लेंगे अपना, क्या उनको दबाव में लाने की तैयारी है? मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना जर्नलिस्टिक एक कैरियर रखते हैं। आप किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर पसंद और नापसंद का इल्जाम लगा सकते हैं कि कोई किसी के हमायत में बोल रहा है, किसी को अच्छा समझता है, बुरा समझता है, लेकिन आप उस आईनी तरीक़ेकार को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते कि जी अब हमने नाम दिया तो उसको चुन ले। ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया और सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर इमरान खान ने हर तरह का प्रेशर इस्तेमाल किया है। कभी उनको प्राइवेट मैसेजेस भेजे हैं, कभी कहा रिजाइन कर दें। अभी चौधरी परवेज इलाही के हवाले से भी आया था कि पिछले दिनों उन्होंने एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के जरिए प्राइवेट जगह पे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसको सिकंदर सुल्तान राजा ने इनकार कर दिया कि आपने मिलना है तो आप आके मेरे ऑफिस में मिलिए। तो वो तो इसको प्रेशर को खातिर में नहीं लाते और उनके मेंबर्स भी उनके साथ चल रहे हैं क्योंकि इत्तेफाक राय से सारे के सारे फैसले हो रहे हैं। सही, इत्तेफाक राय से फैसले तो आमिर साहब होते हैं। तो हमेशा से ये देखा है कि पीटीआई की जानिब से इस तरह से होता है कि कोई भी फैसला आता है तो कहा जाता है, पीटीआई नहीं कोई भी जमात हो तो उसके ऊपर फैसला आने के बाद ये कहा जाता है कि जी अब इसके बाद अदालतों में जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अदालतों के बाद जाने के बाद ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, अदालत में जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और अदालत इसको टेकअप करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन कानूनी और आईनी पोजीशन क्लियर है कि आइन में एक अमल तय कर दिया गया है कि किस तरह निगरान वजीर आजम और निगरान वज़राए आला को बनना है। अब देखें कि केपी के अंदर अपोजिशन ने नाम दिया, गवर्नमेंट ने ओके किया और विद इन 24 आवर्स वजीर आला नए बन भी गए। यहाँ पे चूंकि 3 दिन तक कायदे में इख्तलाफ और वजीर आला दोनों के दरमियान में मुशावरत जुबानी होती रही, फैसला नहीं हुआ, नाम दोनों ने दे दिए, इत्तफाक नहीं किया। पार्लिमानी कमेटी ने 3 दिन लगाए, नहीं हुआ। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेटरी टाइम से 1.25 घंटा पहले अनाउंस कर दिया कि कौन मोहसिन रजा नकवी वो होंगे पंजाब के नए वजीर आला और सुबह उनका ओथ हो जाएगा इसमें। ठीक है, आमिर इलियास राणा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकास अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब विक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। साकिब, आप बताइएगा ये प्रोसेस आज किस तरह से कंप्लीट हुआ और जो अगला मरहला है वोट टेकिंग का, जैसे कि आमिर साहब भी बता रहे थे, इसमें कितना वक्त लगेगा? गवर्नर जो है वो कब तक हल्फ ले सकते हैं? अब जी, यही उम्मीद की जा रही है कि सैयद मोहसिन रजा नकवी जो हैं तो कल निगरान वज़ीर आला जो पंजाब हैं उनका हलफ ले लेंगे और गवर्नर पंजाब जो है वो उनसे उनके ओहदे का हलफ लेंगे। नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है और इस हवाले से उन्होंने गवर्नर पंजाब को ख़त भी लिख दिया है कि सैयद मोहसिन रजा नकवी का बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब हलफ ले लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इजलास जो है वो 1 घंटा से जायद वक्त जारी रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत और आर्टिकल 224A जो है उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना था और इलेक्शन कमीशन ने अपना जो फैसला है वो सुनाया और एक नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया है। इसका एक प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि जो सैयद मोहसिन रजा नकवी हैं वो निगरान वज़ीर आला पंजाब होंगे और उसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही गवर्नर पंजाब जो बलीगुर रहमान को वो कहा गया है कि वो इनके ओहदे का हलफ। अपडेट कर रहे थे वकास अहमद ने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। परवेज इलाही का निगरान वज़ीर आला पंजाब के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का मुतनासिब फैसला हर उसूल और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है। चौधरी परवेज इलाही का निगरान वज़ीर आला पंजाब के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया है। वेलकम बैक। इमरान न्यासी मुल्क में अनारकी फैलाने वाला एजेंट है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ बरस पड़े कहा इमरान न्यासी ने नवाज शरीफ और नून लीग को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाने का मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया। इमरान के जहरीले वार से सियासत को नुकसान पहुंचा। इमरान न्यासी मुल्क में अनारकी फैलाने वाला एजेंट है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ बरस पड़े कहा इमरान न्यासी ने नवाज शरीफ और नून लीग को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया। सहाफती तंजीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने मुल्क में मीडिया की आज़ादी से मुतालिक पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट बराए साल 2022 जारी कर दी।
मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश रही। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार को दबाव में रखने का सिलसिला भी जारी रहा। आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के हुकूक को दबाने की कोशिशों में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार की आलमी दर्जाबंदी में 12 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 157वें नंबर पर चला गया। सहाफ़ियों पर हमलों, मुकदमात और गिरफ्तारियों समेत जबरी नजरबंदियों, नामालूम फोन कॉल्स, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, जिस्मानी तशद्दुद और हिरासा करने के बेशुमार वाक़यात पेश आए। सहाफ़ती जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान 3 सहाफ़ी अरशद शरीफ, अतहर मतीन, ज़ियाउर रहमान फारूकी का कत्ल हुआ, जबकि एक खातून सहाफ़ी सदफ नईम एक हादसे में जाँ बहक हुई। 28 से ज़ायद वाक़यात में 13 सहाफ़ी तशद्दुद का निशाना बने। 2 सहाफ़ियों के घरों पर हमले किए गए, जबकि 10 सहाफ़ियों को गिरफ्तारी और मुकदमात का सामना करना पड़ा। 3 ख़वातीन सहाफ़ियों को भी हिरासा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सहाफ़ियों को शदीद सेंसरशिप और दीगर पाबंदियों का सामना करना पड़ता रहा। सहाफ़ी और मीडिया इदारे अदम बर्दाश्त पर मबनी मीडिया मुखालिफ कार्रवाइयों का निशाना बने। मारूफ बिजनेसमैन बेराम डी अवारी इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बेराम डी अवारी कई अरसे से अलीम थे। बेराम डी अवारी ने बेवा और 3 बच्चों को सोगवार छोड़ा है। ख़ानदानी ज़राए के हवाले से ये खबर सामने आई है। निहायत अफसोसनाक खबर। बेराम डी अवारी कई अरसे से अलील थे, ख़ानदानी ज़राए ने ये बताया है, और बेराम डी अवारी ने बेवा और 3 बच्चों को सोगवार छोड़ा है। बेराम डी अवारी की आखिरी रस्मात पीर दोपहर को अदा की जाएंगी। बेराम डी अवारी को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में इंतहा पसंद सियासतदानों ने तुर्किया के खिलाफ मुजाहरे के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती की, जिस पर मुस्लिम दुनिया ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया का शदीद एहतजाज। इस्लामी ताउन तंजीम, सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, उर्दन और मिस्र ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा बोले, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों के मुक़द्दस किताब पर होने वाले घिनौने हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस्तांबुल में स्वीडन के कौंसल खाने के करीब वाक़े के खिलाफ रैली निकाली गई। तुर्किया हुकूमत ने स्वीडन के वज़ीर दाखिला का अगले हफ्ते का दौरा भी मनसूख कर दिया है। उधर स्वीडन के वज़ीर आज़म ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इज़हार किया है। स्वीडन में दाएं बाजू के इंतहा पसंद सियासतदान रेस्मस प्लोदन ने तुर्किया के सफारत खाने के सामने मुजाहरे में कुरान मजीद की बेहुरमती की। मुजाहरा स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत पर तुर्किया के खिलाफ किया जा रहा था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये ट्वीट, जिसमें कहा कि आज़ादी इजहार को दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिले कबूल है। आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज़ इलाही की स्वीडन वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही का कहना है कि वाक़या इंतहाई दिल आज़ारी वाला फेल है। आज़ादी इजहार की आड़ में ऐसा वाक़या हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। आपको आगाह कर रहे हैं, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मज़म्मत के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मारूफ फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। सरफराज अहमद की बेटे के साथ मदीना मुनव्वरा में नात पढ़ते वीडियो वायरल हो गई। ट्विटर पर शाहीन शाह अफरीदी ने उम्रा अदायगी के मौका पर ली गई तस्वीर शेयर करके मद्दाहों को आगाह किया। तस्वीर में शाहीन शाह अफरीदी खाना काबा के सामने एहराम बांधे खड़े हैं। शाहीन ने तस्वीर के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी उम्रे की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा में सरफराज अहमद की अपने बेटों को कंधे पे उठाए नात पढ़ने की वीडियो वायरल हो गई। हो गया हमें मदीने चला, फिर करम हो गया हमें मदीने चला, मैं मदीने।
इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पढ़ने से।